Welcome all, good morning. Today we start with one more topic in grammar, and that's the types of sentences: compound, complex and simple. But before we start with these three types of sentences, let us have a brief recap of the clauses that we had already done. Now we had done related to say conjunctions. Let's take in short, I'll be just revising. Now, conjunctions we did, they were fanboys. Now, these fanboys were used, you can say, in compound sentence. So we can use this fanboys only and only in compound sentences, right? Now, here in compound sentence, this will be your formula. If you remember what we had done in the previous lectures related to the grammar, compound sentences will have one complete clause, the second also, so that is we will say first, and second also it will be complete. Now the first complete, now we will always go in compound sentence as I told you in this format. Don't go vice versa, it will be always in the right direction we will move. So first complete will always and always be called as main clause or principal clause, but we will take it main clause. The second complete clause will be known as coordinate clause, क्योंकि कई बार बच्चे उसको subordinate बोल देते हैं, but it is coordinate clause. Now, in between this main clause, that is complete, coordinate, again complete, there is a box where we are going to put any one of these fanboys. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. But don't put all together. Here it will be any one of the conjunctions. Any one of the conjunction. Right? So this becomes your compound sentence. But remember, complete, complete, in between, any one of the fanboys, तभी जाके ये पूरा सेंटेंस जो हमने ये जो बनाया with that fanboys, this whole sentence will be termed as compound sentence. Right? It will be called compound sentence. Now, after this, we move on to complex. Right? Now, complex sentence, as I told you, will also have 2 to 3 clauses, but we will deal with 2 clause complex sentence. Now, complex sentence, let's see. जैसे हमने फैनबॉयज़ यूज़ किए थे कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में अगर कुछ याद है तो मैंने बॉक्स बताया था जहाँ पे मैंने कहा था बहुत सारे यहाँ पे भी कंजंक्शंस होंगे, बट ये कंजंक्शन हम क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट? दीज आर कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. और जो हमने कंपाउंड में फैनबॉयज़ यूज़ किए थे वो होंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अब यहाँ पे फॉर्मूला किस तरह से याद करोगे? 1 अटैच्ड 1, मतलब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, दैट इज ST एंड ND, फर्स्ट सेकंड नहीं बोलेंगे. यहाँ पे हम कहेंगे 1 complete, 1
इनकम्प्लीट क्लॉज, राइट। और यहां पे क्या होगा, एनी वन ऑफ दिस। नाउ वाई वी आर सेइंग वन कंप्लीट वन इनकम्प्लीट, क्योंकि इनकम्प्लीट को मैं आगे भी रख सकती हूं यहां पे एंड कंप्लीट को पीछे। रूल ये है कि इनकम्प्लीट का फर्स्ट वर्ड अटैच्ड होना चाहिए एनी वन ऑफ द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट। So this will then be called as your complex sentence, right? Now complete को हम क्या कहेंगे? Say once again, let's put it over here. One complete is called main clause, और जो अटैच्ड विद द बॉक्स है वो बन जाएगा इनकम्प्लीट, मतलब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सो दिस इज कंप्लीट, दिस इज इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट इज कॉल्ड मेन क्लॉज, इनकम्प्लीट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट। अब इसे मैं यहाँ पे भी ला सकती हूँ जैसे यहाँ पे बताया। In most of the sentences, very few sentences you can't flip in complex, but I would say majority of the times you can bring this part over here and main clause at the back. Sentence doesn't change its meaning. Let's see one example. Just an example. So I went to the shop because it would be closed in the evening. So I went to the shop, main clause. अब because आ गया adverb clause of reason का subordinating conjunction attached with this incomplete. So this became your main clause, and this along with this will become your, that is subordinating adverb clause of reason, right? Subordinating adverb clause of reason. अब इसे देखो मैं आगे भी ले सकती हूँ, because the shop would be closed in the evening I went to the shop, right? Because it would be closed in the evening I went to the shop. So that doesn't make much difference. लेकिन अगर यही चीज़ मैं कंपाउंड सेंटेंस में करूँ तो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट हैव अ लुक ओवर योर आ प्रीवियस पार्ट। यहाँ पे किस तरह से बना था? आई टोल्ड यू ऑलवेज गो टूवर्ड्स द राइट, मतलब कंप्लीट कंप्लीट। अब यहाँ पे अगर मैं टॉपसी टर्वी कर लूँ, फ्लिप कर दूँ तो मतलब बदल जाएगा, जस्ट एज वी डिड इन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में मतलब नहीं बदलता, यहाँ पे चेंज हो जाएगा पूरा सेंस। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल ओवर हियर ऑल्सो, दैट इज I worked hard, but I failed. थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेंटेंस और भी हम बना सकते हैं। आई डिडंट वर्क हार्ड बट आई पास्ड, राइट? बट लेट्स टेक दिस ओवर हियर। अब ये क्या बना? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई वर्कड हार्ड, मेन क्लॉज,
आई फेल्ड, वो भी कंप्लीट है लेकिन कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, राइट। अब ये बन गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कॉम्प्लेक्स में यूज करते थे जो बीच में कनेक्टेड, दैट वाज सबऑर्डिनेटिंग, दिस इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इसे तुम उल्टा नहीं लिख सकते, आई फेल्ड बट आई वर्कड हार्ड, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लिप अलाउड नहीं है, राइट, कंपाउंड में। सो दिस इज राइट, wrong, we can't use it, understood? So now let's move ahead with the complex sentence. So now in this complex sentences we already saw कि यहाँ पे तुम flip कर सकते हो, और compound में जैसे मैंने अभी दिखाया कि वहाँ पे हम वो flip system follow नहीं करेंगे, right? Now one more example so that you can understand this complex in a better way, like you can say, let's take this time this box in the beginning. Though I ran fast, I missed the bus or train. Let's write bus. अब यहाँ पे ये हुआ मेन क्लॉज, राइट। दिस बिकम्स योर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, इनकम्प्लीट है, ये है कंप्लीट क्लॉज, दिस इज इनकम्प्लीट। एंड एज पर द रूल आई टोल्ड यू बिफोर, इनकम्प्लीट का फर्स्ट वर्ड हमेशा क्या रहेगा, कंजंक्शन, बट विच कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसलिए हम इसे कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और फैन बॉयज कंपाउंड में आते हैं तो उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नाउ दिस यू कैन पुट इट ओवर हियर आल्सो, लाइक आई मिस द बस, दो, ऑल्दो भी लिख सकते हो, दो I ran fast. So this is your subordinating conjunction and this was adverb clause of reason. जैसे ये हुआ तुम्हारा, you can say subordinating adverb clause of contrast. दौड़े क्यों, बस पकड़ने, तो दौड़े लेकिन उसका ऑपोजिट हो गया, बस ही मिस कर दी। हार्डवर्क किया क्यों, पास होने के लिए, लेकिन फेल हो गए। तो व्हेन योर वन एक्शन गोज कॉन्ट्रडिक्टरी टू द अदर, वी यूज दो या ऑल्दो, तो हम उसे कहेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। सो जस्ट वन एग्जाम्पल लेट मी गिव यू related to your various adverb clauses, right? So related to again your complex part, complex sentences. Now you just take care to see कि complex sentence जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही यूज़ करेगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज्ड फ्रॉम दैट बिग बॉक्स। सेकेंड, इट विल हैव वन कंप्लीट प्लस वन इनकम्प्लीट, राइट, दिस अटैच्ड। थर्ड, कंप्लीट को कहेंगे मेन क्लॉज, इनकम्प्लीट को कहेंगे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लेट्स टेक, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमारे
कितने होंगे? मेन क्लॉज तो एक ही होगा. सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कितने हो जाएंगे? 3 टाइप्स, राइट? इनिशियली 3. तो दैट इज नाउन क्लॉज. अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. नाउन क्लॉज विल मेक द यूज ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दैट इज लाइक दैट या व्हाट, जहाँ पे हम हमेशा क्वेश्चन पूछेंगे. आस्क अ क्वेश्चन व्हाट टू द मेन क्लॉज, आंसर विल बी subordinating noun clause. Got it? तो example, I know that you are tired. तो मेन क्लॉज बॉक्स के साथ अटैच, तो इनकम्प्लीट सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब कौन सा सबऑर्डिनेट? तो द मोमेंट यू सी दैट या व्हाट, यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन पूछ लेना टू द मेन क्लॉज व्हाट. लेकिन अगर तुमने यू आर टायर्ड को बना दिया मेन क्लॉज, तो हमारे इस फॉर्मूला के हिसाब से गलत जाएगा, क्योंकि हमारी फॉर्मूला क्या कहती है? इनकम्प्लीट का फर्स्ट वर्ड बॉक्स में होना चाहिए कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग, बड़े बॉक्स वाला. तो अगर मैं यू आर टायर्ड लिखती हूँ मेन क्लॉज, तो फिर इसका मतलब ये बन गया सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. अब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का तो लास्ट वर्ड आ गया दैट, तो हम यहीं पे पता चल गया कि हम रॉन्ग हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का फर्स्ट वर्ड हमें यूज़ करना है subordinating conjunctions. Understood? Now इसी complex sentence को, so this is main and this is subordinating noun clause. तो ये बन गया complex sentence. लेकिन इसी को अगर तुम्हें कंपाउंड में बदलना है, यहीं पे मैं बताती जाऊंगी कैसे हम उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन ऑल द क्लॉजेज इनिशियली. तो अभी इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं क्लॉज वाइज. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड में जाना है, तो अब क्या करोगे? नाउ यू आर टायर्ड एंड आई नो इट. सी वेरी सिंपल. द मोमेंट यू सी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया है और तुम्हें कंपाउंड बनाना है, अब पता कैसे चलेगा ये कॉम्प्लेक्स है? तो ये ट्रिक्स मैंने बता दी है. सेकेंडली, चलो और थोड़ा इजी, बीच में फैन बॉयज चेक कर लो. अगर फैन बॉयज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स ही होगा. सेकेंड, check it out whether you have like verb plus ing या to plus verb like to come, to go, to see या coming, going, seeing, और कोई फैन बॉयज नहीं, कुछ नहीं, तो बन गया सिंपल. अब वो भी नहीं है, देन आई वुड से इट्स योर कॉम्प्लेक्स. अब कॉम्प्लेक्स को इस तरह से फॉर्मूला में सेट कर दो, वो अपना आप सेट हो ही जाएगा. एंड देन आस्क क्वेश्चन एज आई शोड यू इनिशियली, राइट? कंपाउंड में तुम कब जाओगे? एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड जाना है, तो कब एंड यूज करेंगे? इफ यू सी कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत ही सिंपल जा रहा है, देयर इज नो कॉन्ट्रास्ट, नो रीजन, नो टाइम, नो प्लेस सजेस्टेड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे दो पैरेलल सेंटेंस जा रहे हैं, राइट? यू आर टायर्ड एंड आई नो इट. वेरी सिंपल ना, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रास्ट है लाइक दो, ऑल दो, या ना रीज़न है लाइक बिकॉज, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, राइट? सो दिस बिकम्स योर, दिस इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स
टू कंपाउंड। तो बहुत ही जब सिंपल सेंटेंस एक ही जगह पे फ्लो हो रहे हैं, टू सेंटेंसेस मूविंग इन द सेम फ्लो, देयर इज नो कॉन्ट्रास्ट, नो रीजन, नो रिजल्ट, नो पर्पस, तो सिंपल वाले में हम ऐड करेंगे एंड, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द नेक्स्ट क्लॉज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट, बट लेट्स टेक नाउ एडजेक्टिव। पहले हमने किया नाउन क्लॉज, नाउ एडजेक्टिव क्लॉज। सो अबाउट एडजेक्टिव क्लॉज, एज आई वाज सेइंग, योर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो इसमें हम यूज करेंगे वो होंगे हु, विच, राइट। ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस के आगे, दैट इज फर्स्ट वर्ड, दैट इज दिस वन, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। तो ये इनकम्प्लीट में ये दो आ सकते हैं, क्लियर। नाउ लेट्स टेक वन एग्जाम्पल देन। दैट इज I like the place which has a scenic beauty. राइट नाउ अब देखो, आई लाइक द प्लेस हो गया मेन क्लॉज, कंप्लीट सेंस है इसमें। इफ आई से विच हैज़ अ सीनिक ब्यूटी, तो यहाँ पे तुम कहोगे इट डजेंट हैव एनी सेंस। तो सिर्फ व्हेन आई से डियर विच हैज़ अ सीनिक ब्यूटी, अब ये विच हैज़ अ सीनिक ब्यूटी तो समझ में नहीं आया, तो ये बन जाएगा बड़े बॉक्स का निकला हुआ एक छोटा सा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बट क्या कर रहा है ये वर्ड, डिस्क्राइब्स, इट इज डिस्क्राइबिंग, मतलब कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है विथ अ वर्ड विच, सो दिस बिकम्स योर सबऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव क्लॉज। अब कैसे पता चलेगा, एक तो मैंने कह दिया हु या विच, ह्यूमन बीइंग को डिस्क्राइब करना है तो हु, बाकी सबको डिस्क्राइब करना है तो विच, लेकिन एडजेक्टिव है क्या, यू ऑलरेडी नो, वेन एवर वी डिस्क्राइब अ नाउन इट इज कॉल्ड, दैट डिस्क्राइबिंग वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पे ये नाउन है, ये नाउन, दिस इज नाउन, राइट। इसे हमने डिस्क्राइब किया बाय यूजिंग दिस वर्ड विच। लेकिन अगर तुम्हें जानना है कि भाई ये एडजेक्टिव क्लॉज है या नहीं, तो फिर हम क्वेश्चन कौन सा पूछेंगे, विच, राइट। सो आस्क अ क्वेश्चन विच टू द मेन क्लॉज, तो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, ऑलवेज मेन क्लॉज को पूछेंगे और जो आंसर होगा वो होगा तुम्हारा सबऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव क्लॉज। चलो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आई लाइक द प्लेस, विच प्लेस आई लाइक, आई लाइक द चाइल्ड हु इज नॉटी, विच चाइल्ड आई लाइक। तो ह्यूमन बीइंग के लिए हु, बाकी सब चीज़ों को, चीज़ मतलब नाउन को डिस्क्राइब, इट इज़ योर टुडे, तो टुडे, डे इज़ अ नाउन, प्लेस इज़ अ नाउन, थॉट इज़ अ नाउन, राइट। तो हर एक नाउन को डिस्क्राइब करता हुआ वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्लॉज इज विच या हु अटैच्ड होगा। बट क्वेश्चन हमेशा कौन सा पूछेंगे,
ask a question which to the main clause and the answer that you get is called subordinating adjective clause, right? अब इसी को वेरी सिंपल इट इज, इसी को कंपाउंड में डालना है. अब ये तो हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विथ एडजेक्टिव क्लॉज. लेकिन इसी को अगर तुम्हें कंपाउंड में फॉर्म करना है तो सो कंपाउंड क्या बनेगा? यहाँ पे कोई कॉन्ट्रास्ट है? नो. डू यू हैव रिलेटेड टू टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन, रिजल्ट? कुछ नहीं. अगेन इट इज गोइंग पैरेलल, तो हम क्या यूज करेंगे? अब तो बाहर हो गया होगा एंड, राइट? वेरी सिंपल. जब भी कोई कॉन्ट्रास्ट, रीजन, रिजल्ट एट्सेट्रा ना हो तो हम हमेशा यूज करेंगे एंड टू ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड. तो इसी को तुम अपने दिमाग में बना सकते हो. आई नो इट्स वेरी इजी और तुम्हें याद भी रह गया होगा हाउ टू ट्रांसफॉर्म, राइट? आई लाइक द प्लेस एंड इट हैज़ अ scenic beauty. Yeah, I would say a better way would be a place with a scenic beauty. A place has a scenic beauty and I like it. So, this is how you can just transform from complex to compound, compound to simple. But the moment you come towards simple, तो इट बिकम्स डिफरेंट फॉर्मेट. तो वो बाद में कर लेते हैं. नाउ आफ्टर एडजेक्टिव क्लॉज वी हैव 9 फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब क्लॉजेस. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स इट, बट दिस टाइम इट इज़ जस्ट सिंगल एग्जाम्पल फॉर एक्सप्लेनेशन. बट फिर कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं वो हम मेन सीख रहे हैं इस लेक्चर में, राइट? सो now your 9 adverb clauses. तो फर्स्ट वन टाइम के बारे में एक चेक कर लेते हैं. दैट as soon as the man saw the police he ran away. और या तुम वेन भी लगा सकते हो. टाइम रिलेटेड है तो कोई भी वर्ड जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में आ रहा है तो तुम उस तरह से बना सकते हो. तो हम अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे सारे एडवर्ब क्लॉजेस के. वेन द थीफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे. अब तो आसानी से पता चल गया होगा कि ये कॉम्प्लेक्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? वाई कॉम्प्लेक्स? ही रैन अवे कंप्लीट. व्हेन द थीफ सॉ द पुलिस इनकम्प्लीट. यहाँ पे वो फ्लिप वाला लिया है, आगे हमने इनकम्प्लीट सेंटेंस लिया है. और क्योंकि रिलेटेड टू टाइम इट इज सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, राइट? और ये है इनकम्प्लीट सेंटेंस. दिस इज कंप्लीट, तो नेचुरली ऑलवेज मेन क्लॉज. ये हुआ कंप्लीट, राइट? और ये तुम्हारे बड़े बॉक्स में से निकला हुआ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अब इसी को कंपाउंड बनाना है तो कैसे करेंगे? और दिस रिलेटेड टू टाइम. तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो अगर ना पता चले कि कॉम्प्लेक्स है फिर कौन सा क्लॉज है. तो फाइंड आउट द मेन क्लॉज. ही रैन अवे. व्हेन ही रैन अवे, व्हेन द थीफ सॉ द पुलिस. सो व्हेन यू गेट द आंसर विथ व्हेन, क्वेश्चन तो हर बार मेन क्लॉज को ही पूछना है, बट द मोमेंट यू गेट द आंसर बाय आस्किंग व्हेन टू द मेन क्लॉज इट बिकम्स एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. अब ये भी एकदम सिंपल जा रहा है तो इसको हम कंपाउंड में कैसे बदलेंगे? ये तो सिंपल वाला जा रहा है, पैरेलल. द थीफ रैन अवे, राइट? व्हेन ही सॉ द पुलिस. तो यू कैन से
सबसे पहले एक्शन क्या की, उसने पुलिस को देखा, बाद में भागा, पहले भागा नहीं, पहले देखा। तो हम कैसे लिखेंगे कंपाउंड, और दोनों सेंटेंस बहुत ही सिंपल वे बढ़ रहे हैं आगे, कोई रीज़न रिजल्ट अगेन कुछ नहीं है यहाँ पे। सो द thief saw the police and yes, now you got it perfectly, and he ran away. क्लियर? अगर यहाँ पे बिकॉज होता तो भी यही सेंटेंस बनता, लेकिन यहाँ पे सिस्टम कुछ अलग हो जाती। द थीफ रैन अवे बिकॉज ही सॉ द पुलिस, राइट? ये अलग है, ये टाइम के बारे में है, इसी को मैं अलग सेंटेंस भी बना सकती हूँ। क्लियर? सो लेट्स सी द डिफरेंट सेंटेंस. वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक ओवर हियर रिलेटेड टू एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम इज एज सून एज, मतलब कि यही हुआ, यू कैन यूज व्हेन ऑल्सो. एज सून एज द वॉर एंडेड, the families, or you can say many families, returned home. अब ये अगेन मैनी फैमिलीज रिटर्न होम, मेन क्लॉज, क्योंकि कंप्लीट सेंस है। यहाँ पे अगर मैं इतना ही कहूँ, when I start giving you some example of a sentence, अगर मैं इतना ही बोलूँ as soon as the war ended, तो naturally तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा, भाई आगे तो बोलो कुछ, क्या हुआ? as soon as the war ended what happened? तो मैं बोल ही नहीं रही, मतलब कि इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर मैं ऐड करूँ as soon as the war ended many families returned home, अब ये हुआ पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंप्लीट हो गया ये। तो कंप्लीट, इनकम्प्लीट, अब ये इनकम्प्लीट हमेशा हम क्या कहते हैं इसे, इनकम्प्लीट को हर बार क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। लेकिन कौन सा सबऑर्डिनेटिंग विल डिपेंड ऑन दी दिस बॉक्स में से निकाले हुए वर्ड्स, बड़ा बॉक्स, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे डिपेंड होगा। फिर क्वेश्चन भी पूछ सकते हो तुम, जैसे मैंने कहा ये टाइम रिलेटेड है, तो आस्क अ क्वेश्चन व्हेन मेनी फैमिलीज रिटर्न होम एज सून एज द वॉर एंडेड, और व्हेन द वॉर एंडेड, तो मतलब तो वही हुआ। इट्स जस्ट इन अ डिफरेंट फॉर्म आई शोड यू कि कहीं पे तुम व्हेन भी यूज कर सकते हो या तुम एज सून एज भी यूज कर सकते हो, राइट? नाउ आफ्टर गेटिंग कन्फर्म कि भाई ये एडवर्ब क्लॉज सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है और ये बना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट? तो अब इसको हम कंपाउंड में कैसे बनाएंगे? अगेन यहाँ पे तो कोई रीज़न रिजल्ट नहीं है, ना कोई कॉन्ट्रास्ट, ना कोई डिस्क्रिप्शन, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? डायरेक्टली एंड। मैनी द वॉर एंडेड एंड मैनी फैमिलीज रिटर्न होम। कई बार कई सेंटेंस फ्लिप करके भी कंपाउंड बनते हैं, कई बार सीधे सीधे भी बन जा रहा है, बट यहाँ पे मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। सो दी वॉर एंडेड एंड मैनी फैमिलीज रिटर्न होम। क्लियर? सो कंप्लीट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और बना क्या? कंपाउंड, राइट? एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स। क्लियर? एंड few more examples to go on with. So let's take one example of, say, adverb clause of place. Again continue with the complex, but this time adverb clause we will see, right? Adverb clause
ऑफ प्लेस ले लेते हैं एग्जाम्पल में. अब प्लेस में कौन से वर्ड यूज करेंगे हम? वेयर, वेरेवर. और क्वेश्चन कौन सा पूछेंगे? आस्क अ क्वेश्चन वेयर टू दी, अब तो बैट हो गया होगा, ऑलवेज टू द मेन क्लॉज ऑल द क्वेश्चंस. और आंसर मिल रहा है अगर विच से तो एडजेक्टिव, व्हेन से तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, वेयर से जवाब मिल गया है तो आंसर विल बी एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस बन गया, राइट? सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल नाउ. You can say he traveled when no one could reach him. He traveled where no one could reach him. So this is your complex sentence. अब यहाँ पे कौन सा वो बड़े बॉक्स वाला वर्ड कौन सा होगा? वेयर. तो नेचुरली वेयर के साथ अटैच्ड वाला पार्ट अपने आप बन जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज. लेकिन कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज? तो मेन क्लॉज को एक क्वेश्चन पूछ लो, ये टाइम के बारे में तो बता नहीं रहा, वेयर है या वेयर एवर है तो प्लेस. Ask a question where to the main clause. So where he traveled, where no one could reach him. तो बन गया ये subordinate adverb clause of time. Sorry, adverb clause of place. Clear? अब once again जैसे हमने टाइम में देखा वैसे प्लेस में भी वही है कि ये पैरेलल जा रहे हैं दोनों सेंटेंस, दोनों क्लॉज. He traveled, no one could reach him. No reason, result, purpose, contrast, nothing. So same, we are going to make use of and. He traveled and no one could reach him. Clear? So this becomes your कंपाउंड सेंटेंस. अब इसी तरह से एक पार्ट देख लेते हैं. लेट्स सी नाउ जहाँ पे एंड नहीं होगा लेकिन फिक्स्ड वर्ड्स होंगे यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल से लेट्स टेक एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, राइट? तो रीजन के लिए कौन से वर्ड यूज करेंगे हम कॉम्प्लेक्स में? बिकॉज, सिंस, राइट, एज in this box. Clear? So I was absent because I was busy. Any example you can take. I was absent because I was ill. I was absent because I had an important project to complete. Clear? अब यहाँ पे अगर मैं I was busy लिख लेती हूँ मेन क्लॉज तो हमारा ये सिस्टम वाला फॉर्मूला जो है वो गलत जाएगा क्योंकि फिर ये इनकम्प्लीट हो गया. तो इनकम्प्लीट का तो फर्स्ट वर्ड होना चाहिए बॉक्स, यहाँ पे आ गया लास्ट वर्ड. इट मीन्स वी आर रॉन्ग समवेयर. तो हमेशा इनकम्प्लीट सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड बॉक्स होगा फिर अटैच्ड. तो ये हुआ रीज़न. तो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन आ गया क्योंकि तुम रीजन बता रहे हो. एंड आस्क अ क्वेश्चन
y to the main clause. Answer will become adverb clause of reason. तो main clause क्या है? I was absent. Why I was absent? Because I was busy. और इसी को अगर, तो ये हुआ तुम्हारा कॉम्प्लेक्स. अब इसी को कंपाउंड बनाना है तो अब यूज़ करो. एंड नहीं लगा पाओगे क्योंकि दोनों पैरेलल नहीं जा रहे हैं. यहाँ पे कुछ रीज़न है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे कंपाउंड सेंटेंस का फॉर. राइट. तो आई वॉज एब्सेंट और क्या यूज़ करेंगे? फॉर. मतलब कंपाउंड का, फैन बॉयज का फॉर, जो मैंने बताया था जब समझाया था कि फॉर इज यूज्ड फॉर शोइंग रीजन. आई वॉज एब्सेंट फॉर आई वॉज बिजी. तो ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस. क्लियर. और इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे रिलेटेड टू योर नेक्स्ट एडवर्ब क्लॉजेस. राइट. So as we saw just now that in place of when हमने यूज़ किया and, where we used and for compound. उसी तरह से जब हम आगे बढ़े with adverb clause of reason, जहाँ पे because, since, as, तो वहाँ पे हमने तुरंत यूज़ किया कंपाउंड सेंटेंस वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का for, क्योंकि फैनबॉयज में F stands for for एंड फॉर इज यूज फॉर रीज़न. तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न जब ट्रांसफॉर्म करना है तो हम यूज़ करेंगे बिकॉज की जगह पे, या सिंस एज दिया है तो उसकी जगह पे फॉर. क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट. इसके लिए भी फिक्स्ड वर्ड्स होंगे कंपाउंड की तरफ जाते हुए. तो योर एडवर्ब क्लॉज ऑफ, that is subordinating adverb clause of contrast. अब contrast में हम words use करेंगे from the box, that big box वाले words, that is though, although. ये word तुम use कर सकते हो, meaning is same. अभी थोड़े टाइम पहले मैंने example भी दिया था. and here there will be no questioning, right? The moment you see though, although, it means it is complex sentence or complex sentence, but that is related to contrast. और उसके लिए compound में compulsory we will use but या yet, right? fan boys का but या yet. तो ये बन गया compound sentence के छोटे से box के words. Understood? तो ये याद रखना है कि when या where वाले में and, though although कॉम्प्लेक्स होगा कंपल्सरी, तो उसको कंपाउंड में डालना है तो but या yet एग्जैक्टली इन बिटवीन. लाइक दिस इज वंस अगेन, ये तो तुम्हारे दिमाग में फिट कर दूँ मैं बता बता के. एंड दिस इज सेपरेट, कंप्लीट, 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 इनकम्प्लीट, कॉम्प्लेक्स, राइट. एंड दिस इज कंपाउंड. तो अब दो या ऑल दो यहाँ पे होगा कोई भी एक, तो उसे निकाल के हम यहाँ पे फिट करेंगे बट या येट. लेकिन ध्यान रखना है मीनिंग नहीं बदलना चाहिए. लाइक एग्जाम्पल हमने पहले भी एक लिया था. लाइक यू कैन से दिस टाइम सम बेटर एग्जाम्पल और सम न्यू एग्जाम्पल. लेट्स सी हाउ डज इट गो. लाइक ऑल्दो he was a trained engineer, he was not smart enough at his work. चलो ये कुछ तुम्हारे लिए लंबा हो गया. तो though he cannot drive, he loves cars. चलो ये easy है, small one initially. though he cannot drive, he loves cars. Clear? तो समझ में आ गया. कंप्लीट,
इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का फर्स्ट वर्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बॉक्स. सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स. क्लियर? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इसी को कंपाउंड में डालना है तो कॉन्ट्रास्ट के लिए कौन से यूज किए थे हमने कंपाउंड में? बट या येट. तो डोंट से बट ही कैनॉट ड्राइव ही लव्स कार्स, क्योंकि कंपाउंड का रूल है इन बिटवीन, राइट? तो बीच में ही आएगा बट या येट. तो अब सेट करो इस सेंटेंस को जैसे कि मीनिंग ना बदले. ही cannot drive but he loves cars. You can't say he loves cars but he cannot drive. That doesn't make sense by itself. तो सीधे ही लिखेंगे he cannot drive but या yet. but बीच में बॉक्स आ गया कंपल्सरी. he loves cars. जैसे मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था, आई वर्कड हार्ड बट आई फेल्ड. वो कंपाउंड था, उसको कॉम्प्लेक्स में डाले तो बट बीच में से निकाल के स्टार्टिंग में दो लगा दो या ऑल दो आई वर्कड हार्ड आई फेल्ड. सो दिस बिकम्स कंपाउंड सेंटेंस. क्लियर? इनकम्प्लीट, कंप्लीट. दिस इज कंप्लीट, कंप्लीट. नाउ वन मोर वी विल टेक, that is say adverb clause of condition. चलो let's take adverb clause of condition. अब condition में कौन से वर्ड यूज होंगे कॉम्प्लेक्स में? राइट? दैट इज बड़े से बॉक्स से उठाएंगे if या unless या if डॉट डॉट नॉट, ये वर्ड यूज कर सकते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. राइट? दिस आर कॉम्प्लेक्स सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सो एग्जाम्पल, इफ यू विल वर्क हार्ड you will pass or you will succeed. हर बार पास फेल की तो बात नहीं कर सकते हम, तो चलो बड़ों की बात करते हैं. इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. सो कंप्लीट, इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट का फर्स्ट वर्ड अटैच्ड, बड़ा बॉक्स वाला एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इफ या अनलेस. अनलेस लिखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बदलाव लाना होगा. दैट विल सी लेटर ऑन हाउ टू ट्रांसफॉर्म. बट एट प्रेजेंट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स. अब इसी को अगर कंपाउंड दिया है तो यही कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट? और कॉम्प्लेक्स दिया है तो कंपाउंड यही बनेगा, राइट? सो आई एम शोइंग यू वन वे ट्रैफिक, द अदर वे फ्लिप एंड यू विल अंडरस्टैंड. लाइक ही कैनॉट ड्राइव बट ही लव्स कार्स. कॉम्प्लेक्स बनाओ तो बट निकाल के स्टार्टिंग में दो या ऑल दो. क्लियर? नाउ इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. अब कंडीशन में हमने ये तो बना तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कंपाउंड के लिए हमने कौन से फैनबॉयज में से यूज करना है हमें? और. सो कंप्लीट बॉक्स अगेन कंप्लीट, और यहाँ पे आ जाएगा और हमारा कंपाउंड सेंटेंस वाला फैनबॉयज का, राइट? लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज लाना होगा, नहीं तो सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाएगा. जैसे डायरेक्टली हमने ये जो किया था वैसे ही सेम डॉट टू डॉट नीचे नहीं लिखना है. योर स्लाइट डिफरेंस, लाइक इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड, राइट? तो यहाँ पे यू विल एंड ऑल वी विल दो बार नहीं लिखना है, कंपाउंड में एक ही बार लिखेंगे. सो यू डोंट से यू विल वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड. जस्ट से डायरेक्टली स्टार्ट कंपाउंड में वर्क हार्ड. चलो हार्ड वर्क कर लो, अदरवाइज दिस योर डेली सेंटेंस. कहीं पे सुनने मिलता है कि नहीं? फ्रॉम दैट एम वाले दो लोग, मॉम एंड मैम. वर्क हार्ड
or you will not succeed, right? तो ये बन गया complete, complete, coordinating conjunction and your compound sentence. Clear? So this is how, यहाँ पे हम नेगेटिव भी लगा सकते हैं. If you will not work hard, you will fail. तो लिख सकते हैं work hard और you will fail. तो जहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो कंपाउंड में ओनली दिस इज वी आर डूइंग फॉर कंडीशन के लिए कि कॉम्प्लेक्स में अगर नेगेटिव नहीं है तो कंपाउंड में हम नेगेटिव यूज़ करेंगे, और अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो हम निकाल देंगे. कहीं पे भी यहाँ पे नेगेटिव तो विल रिमूव इट, अदरवाइज विल ऐड इन कंपाउंड. जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया, वंस अगेन लेट मी रिपीट. इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. तो देखो आ गया नेगेटिव वर्ड कंपाउंड में, वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड. लेकिन अगर मैं नेगेटिव यहाँ पे ऐड कर रही हूँ तो ये बन जाएगा विदाउट नेगेटिव वर्ड. इफ़ यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल. वर्क हार्ड और यू विल फेल, तो यहाँ पे नॉट था तो यहाँ से निकाल दिया. क्लियर? सो दिस इज हाउ वी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड. नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक. चलो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं रिलेटेड टू अभी जो हमने कंडीशन किया, राइट? सो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का कंटिन्यूटी. ए वन मोस्ट एग्जाम्पल दैट इज I can say I will attend the party if you personally invite me. So यहाँ पे अब तक तो एकदम मस्त आ गया होगा कि आ गया इफ़. कई बार स्टार्टिंग में रहेगा, कई बार यहाँ पे इन बिटवीन, लेकिन इफ़ के साथ के बाद का अटैच अगर स्टार्टिंग में होता तो दिस वुड हैव बीन ओवर योर एंड दिस वुड हैव बीन ओवर योर. तब भी इफ़ के बाद का पार्ट ही एनी ऑफ द सिचुएशन में इनकम्प्लीट पार्ट, मतलब कि कोई ना कोई एडवर्ब क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर, तो ये हुआ सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, राइट? बिकॉज इट इज इफ या अनलेस यूज करते हैं हम. और ये बना कंप्लीट. कंप्लीट मतलब अगेन मेन क्लॉज एंड दिस विल बिकम योर सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्योंकि हमने इफ या अनलेस देखा, राइट? अब इससे तो ये हुआ तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. लेकिन इसी को अगर हमें कंपाउंड में डालना है तो एज आई टोल्ड यू कंपाउंड में फैनबॉयज में से कंडीशन के लिए क्या पिकअप करेंगे और, लेकिन थोड़ा सा बदलाव लाना है कि मीनिंग ना चेंज हो जाए पूरे सेंटेंस का. डोंट राइट आई विल अटेंड द पार्टी और यू पर्सनली इन्वाइट मी. रॉन्ग. अच्छा ऐसे भी नहीं लिख सकते यू पर्सनली इन्वाइट मी और आई विल अटेंड द पार्टी, तो भी रॉन्ग, मतलब ही चेंज हो गया, राइट? इन मेनी ऑफ द केसेस यू हैव टू ऐड अ नेगेटिव वर्ड सो दैट द मीनिंग डजंट चेंज. हाँ, इन सम ऑफ द एग्जाम्पल यू मे नॉट ऐड नेगेटिव, बट मेजॉरिटी ऑफ दिस सेंटेंसेस तो रीड यू विल हैव टू फ्रेम एंड सी कि मीनिंग बदल रहा है या नहीं. तो यहाँ पे तो मीनिंग एकदम ही चेंज हो गया अगर मैं बोलती हूँ आई विल अटेंड द पार्टी और यू पर्सनली इन्वाइट मी. रॉन्ग. तो हम ऐसे लिखेंगे you personally invite me or I will not attend the party, right? You personally invite me, ये धमकी नहीं दे रहे, इट्स जस्ट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन की बात हो रही है. You personally invite me or I will not
attend the party. So not. Attend the party. Clear? Next we move on to a adverb clause of manner. क्लास में तो बहुत मज़ा आती है जब हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर करते हैं. यू देयर, सिट स्ट्रेट, सी द वे यू आर सिटिंग, सी द वे यू आर लुकिंग एट दैट पर्सन. अब बच्चा बेचारा डर गया. चालू लेक्चर में एकदम से सवाल मेरा किसी एक बच्चे की तरफ, डोंट यू नो हाउ टू sit in a class? Is there any like this way when we say? And then I said, this is how is he sitting, or how is he talking, or how is she behaving? तो वो मैनरिज्म हो गया, राइट? तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? आस्क अ क्वेश्चन हाउ टू द मेन क्लॉज ऑलवेज, और जो जवाब मिलेगा वो बन जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ manner. So example very simple we can take that the man was talking as if he was the leader of the group. ये मैंने पहले भी बताया था एक बार शायद, I remember that way. तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, the man was behaving as if he was very intelligent. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछो, हाउ टू द मेन क्लॉज. चलो पूछ लेते हैं. अब उसके पहले मेन क्लॉज कौन सा है? ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. नो, क्योंकि फिर ये आ जाएगा लास्ट में. इसका मतलब ये एज इफ है, बड़े बॉक्स वाला वर्ड, उसके साथ अटैच्ड पूरा, इनकम्प्लीट, और ये हुआ कंप्लीट. सो मेन क्लॉज हम इसे पूछेंगे हाउ, क्योंकि एज इफ देखा, या सच दैट. तो वर्ड्स तुम्हें पता होने चाहिए कि कौन से एडवर्ब क्लॉज में हम कौन से वर्ड यूज़ कर रहे हैं. तो उस हिसाब से तुम क्वेश्चन भी पूछोगे, राइट? हाउ द मैन वॉज बिहेविंग, आंसर आ गया, एज इफ ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, राइट? एंड मेनी अ टाइम्स यू विल नॉट बी एबल टू फ्रेम कंपाउंड. इसमें ऐसे तो कोई वर्ड है नहीं कि लाइक बट, दो ऑल दो की जगह पे हमने डायरेक्टली बट यूज़ किया, इफ़ या अनलेस की जगह पे और यूज़ किया, व्हेन वेयर या वेर एवर की जगह पे एज सुन एज, टाइम प्लेस की जगह पे हमने एंड यूज़ किया था. सो द मैन वॉज बिहेविंग एज इफ ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट. तो ये कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा. सी जस्ट ट्राई. द मैन वॉज बिहेविंग and he was very intelligent. No, he was very intelligent and the man was behaving. No. So but this is just to show you कि ये एक हम adverb clause कर रहे थे साथ साथ में. So just have a look at it, adverb clause of manner. So this is how we keep on moving from, you can say, complex to compound, एंड फ्रॉम यू कैन से, जैसे अलग अलग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने देखे, व्हेन, वेयर, विच, इफ़, एज इफ, सच दैट, जैसे एज इफ की जगह पे सच दैट, एंड बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हमने देखे सेंटेंसेस, एंड हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू योर कंपाउंड सेंटेंस. एंड यू विल बी ऑफ कोर्स आस्क्ड इन एग्जाम ओनली दोज कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड सेंटेंसेज जो कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट? एंड फिर बाकी के एडवर्ब क्लॉजेस ऑलरेडी हमने पहले इसके जो क्लॉजेस का लेक्चर था उसमें किया था. दिस लेक्चर इज मोर रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. गॉट इट? एंड एज यू मूव अहेड वी कैन ऑल्सो से that
you can take it as one more like simple. Let's see सिंपल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ये भी बहुत सिंपल है. सिंपल सेंटेंसेस, इसमें हम वर्ड्स यूज़ करेंगे लाइक वर्ब प्लस आईएनजी या टू प्लस वर्ब या TO TOO, right? So let's take one example. He was so tired that he could not lift the bag. अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन में और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, पास्ट पास्ट प्रेजेंट प्रेजेंट अकॉर्डिंगली. तो ये पास्ट है, ये भी पास्ट में ही जाएगा. तो आंसर कैसे, अब सो डॉट डॉट दैट, गो थ्रू योर एडवर्ब क्लॉज का वीडियो तो पता चलेगा यही मेरा डायलॉग. सो डॉट डॉट दैट, इट मीन्स एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट. रिजल्ट आ गया है कि वो इतना टायर्ड था कि बैग लिफ्ट ही नहीं कर पाया. यू गेट द रिजल्ट. सो दिस इज द एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये, राइट? इसी को सिंपल बनाना है तो यहाँ पे हम टू लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा TOO एंड लेट्स फ्रेम. ही वॉज too tired to lift the bag. Simple. Sorry for this. TOO TO. अब TO के साथ हमेशा मैंने ये बताया वर्ब अटैच होगा. लिफ्ट, टू लिफ्ट समथिंग. और ये है तुम्हारी स्टेट कंडीशन. वॉज का हमने वॉज ही रखा, पास्ट पास्ट. तो ही वॉज टू टायर्ड टू लिफ्ट द बैग. वंस अगेन नेगेटिव कट ऑफ कर देंगे और नेगेटिव यहाँ पे नहीं है तो हम ऐड करेंगे. सो लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स वी विल सी ओवर योर. सो वी स्टार्टेड विथ सिंपल सेंटेंसेस और मैंने बताया था कि वर्ब प्लस आईएनजी या TOO या TO प्लस वर्ब, दैट इज टू प्लस वर्ब. बट समटाइम दी सेंटेंसेस डजेंट आस्क फॉर दिस वर्ड्स. तो सिंपल सेंटेंस थोड़े और ज़्यादा सिंपल हम बनाएं. लाइक यहाँ पे पास्ट टेंस है जहाँ पे तुम टू एडमिट नहीं लिख सकते, पास्ट को हम पास्ट ही हमें रखना है. सो लेट्स सी, ही एडमिटेड दैट ही वॉज गिल्टी. अब ये तो पता चल ही गया कि भाई ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है विद अ नाउन क्लॉज, क्योंकि बीच में दैट या वॉट आ गया. आस्क अ क्वेश्चन वॉट टू द मेन क्लॉज, वॉट ही एडमिटेड दैट ही वॉज गिल्टी. तो बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद अ नाउन क्लॉज. अब इसे हमें निकाल के एक सिंपल सेंटेंस बनाना है विदाउट एनी फैन बॉयज एंड विदाउट एनी बिग बॉक्स वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सो हम क्या लिखेंगे, ही एडमिटेड हिज गिल्ट. सिंपल. फिर और एक लिखते हैं, टेल मी व्हेन द मीटिंग विल बी हेल्ड. तो ये भी तुम्हें पता चल ही गया होगा. when, whenever, where, wherever, if, even if, unless, though, although, बहुत सारे मतलब कॉम्प्लेक्स, लेकिन अलग अलग क्लॉजेस. एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन, रिजल्ट, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज. तो एक एग्जाम्पल देखा नाउन क्लॉज, ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. क्वेश्चन पूछेंगे इज दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ये तो अब तक तो आ ही गया है तुम्हें. तो नाउन क्लॉज तो नहीं है लेकिन ये है टाइम रिलेटेड. क्वेश्चन क्या पूछेंगे, व्हेन द मीटिंग विल बी हेल्ड. अब देखो टेल मी
when the meeting will be held. हो गया wrong, आंसर मिल रहा है no. Here the moment you see when doesn't always mean time. तो चलो पूछ लो क्वेश्चन फिर भी एक बार, राइट? टेल मी, what to tell me when the meeting will be held. तो हो गया noun clause and not. समझ में आ गया? तो ऑलवेज द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑलवेज फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या पूछेंगे? टू बी आस्क्ड, टू मेन क्लॉज in complex sentence will be what? What. ठीक है? Ask what. फिर अगर what से जवाब नहीं मिल रहा तो हम when, why, where आगे बढ़ेंगे. अब यहाँ पे कैसे गलती हो गई समझ में आ रहा है? when देख के मैंने तो तुम्हें बता दिया टाइम और तुम भी मेरी हाँ में हाँ ही करते जाओगे. बट दिस इज जस्ट टू शो यू हाउ समटाइम वी मेक मिस्टेक. व्हेन देख के डायरेक्टली टाइम, लेकिन व्हेन पूछा है तो जवाब ही नहीं मिला, लेकिन व्हाट पूछने पे जवाब मिला, मतलब ये वापिस हुआ नाउन क्लॉज. गेटिंग इट? तो इसे हम कैसे सिंपल में बनाएंगे? वेरी सिंपल. प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिख लो. टेल मी द टाइम ऑफ मीटिंग, राइट? सिंपल सेंटेंस कैसे बनाओगे? टेल मी द टाइम ऑफ मीटिंग. क्लियर? नाउ वन मोर वी कैन ट्राई ओवर योर इज, लेट मी से आई हैव नो मनी that I can lend you. I have no money that I can lend you. कॉम्प्लेक्स. इसे सिंपल में कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल. I have no money to lend you. ये बन गया सिंपल. क्लियर? वन मोर. People who live in glass houses should not throw stones. People living और चलो पहले सिंपल ही लिख देती हूँ एज आई ऑलरेडी रिटन लिविंग. पीपल लिविंग इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स. तो ये बन गया है सिंपल बिकॉज आईएनजी. अब इसको चलो उल्टा कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. तो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट? व्हेन यू मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमें देखना है कि भाई कहीं पे टाइम है, प्लेस है, तो व्हेन, वेयर, रीज़न है तो बिकॉज, सिंस. तो अब फ्लिप करके लिखेंगे. अब यहाँ पे क्या है? डिस्क्राइब कर रहे हैं, लोगों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट? सो पीपल who live in glass houses should not throw stones, right? तो ये बन गया complex. And now one more. Let's see some more examples like the same.
पहले भी हमने शायद थोड़ा अलग फॉर्मेट में किया था. When he saw the teacher, he ran away. ये तो होगा नहीं, बट जस्ट एग्जाम्पल. अब यहाँ पे when आया, फिर से मैंने क्या बोला था, वॉट पूछ के देखते हैं सबसे पहले. नहीं सेट हुआ, देन इज ओके, when इज राइट. वॉट ही ran away नहीं बन रहा, मतलब अब when से पूछो तो राइट होगा. when he ran away, when he saw the teacher. तो मेन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और इसे हम बनाएंगे सिंपल. राइट. अब सिंपल में क्या, या तो TO2 प्लस वर्ब या वर्ब प्लस ING. तो यहाँ पे वी कैन राइट ऑन सीइंग द टीचर देन कॉपी डाउन, ही रैन अवे. हम ऐसे नहीं लिखेंगे ऑन रनिंग अवे ही सॉ द टीचर, क्योंकि सिंपल बनाते हुए हमें क्या देखना है, ऑलवेज फर्स्ट एक्शन दो में से कौन सी है. पहले टीचर को देखा या पहले वो दौड़ा. तो सिंपल बनाते हुए हमेशा हमें फर्स्ट एक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग ढूंढना है दो पार्ट में से, और फिर उस फर्स्ट एक्शन को हम बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एंड सेकेंड एक्शन कॉपी डाउन एज इट इज. राइट. तो पहली एक्शन क्या है बच्चे की, देखना, फिर दौड़ना. तो ऑन सीइंग द टीचर ही रैन अवे. I was surprised when I saw his photography. Right? I was surprised when I saw, चलो कुछ और बनाते हैं, that pic, complex. अब पहली एक्शन क्या हुई, देखा, फिर सरप्राइज्ड हुए. देखने के पहले सरप्राइज नहीं हुए, तो दिस इज फर्स्ट एक्शन. उसे हम बनाएंगे ING. ऑन सीइंग द पिक और ऑन सीइंग दैट पिक, कॉपी डाउन. I was surprised. Right? I was surprised. Just copy it down. This is simple. तो आज तक के लिए इतना काफ़ी. रिपीट, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब आगे बढ़ें विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इट विल बिकम स्टिल ईजियर फॉर यू. थैंक यू सो मच. टेक केयर. Keep on revising grammar and other subjects, all these subjects. Thank you very much. Take care.